Thanks for going through my previous lectures. And today I'm going to discuss about my lecture number 6. The topic is perpendicular distance from a line to a point. Okay. So we are going to find out the perpendicular distance uh, from a given point to a line. Okay. And also find the foot of the perpendicular at that time. So how we do that? Just go through the things, and then just we are going to our topic is straight line in a space, lecture number 6. Okay, before going to the lectures, just subscribe and like press the bell icon so that you can get updates about that. Okay, so here how we find out the perpendicular distance in the foot of the perpendicular to a line. Okay, so just first algorithm is I am going to discuss about when the Cartesian equation is given. Okay, so first thing is that when the Cartesian equation is given, okay, then we are going to discuss the things. Okay, when the Cartesian equation is given. So just doing with that, and what is the Cartesian equation? So this is the Cartesian equation of a line. Okay, the equation of this line is given, and we are going to draw a perpendicular line on that, and this point is the intersection of the point of which the coordinates we are going to find out, and this is the point P, which is given in the question. Okay, this is the point of Q of which we are going to find out the coordinates. Okay, so how we find out the points? Just do the first step process, and we can find out the distance as well as the coordinate of the point Q. Okay, first one is that find the value of x, y, and z from the line equation by putting lambda. Okay, so what we will do that we will find the value of x, y, and z in terms of lambda. Okay, so just putting this equation equals to lambda, and then do that. So let us consider a foot of perpendicular. Okay, this is the foot of perpendicular of that point. We are going to find out the coordinate of this point. So how we are going to that? First we have to find out the direction ratios of PQ and direction ratios of this, we can say that line AB. Okay, so and apply the perpendicularity concept. Okay, what is the perpendicularity conditions for the given perpendicular line? That A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0, where A1 A2 B1 B2 and C1 C2 are the DRs of AB and PQ lines. Okay, and then from that equation, from this condition, we are going to find out the value of lambda and put these lambda in the step 4, and if we find out the point of Q. If the distance is asked in the question, so we can just uh, put the check distance formula and then find out the steps. Okay, so just we are going to discuss one question on the behalf of that. So first thing is that here is z. Okay, not x. Okay, here is z. So we are going to first step. What is our first step? Step first, we are going to put these equation equals to lambda. First this the line, the equation of this equation of line, equation of this line is given. We are going to find out the coordinates of this point is Q, that is x, y, and z, and the P point is given, that is 0, 2, and 3. So uh, we have to find out the coordinates of x, y, z. हमें क्यों ये फाइंड करने हैं x के कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट? बिकॉज जब हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, drs निकाल सकते हैं p q के. ओके, और हमें ए बी लाइन के drs ऑलरेडी दिए हुए हैं, दैट इज
वो 5, 2 एंड 3 है। ओके, सो तब हम उसमें क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं और वहां से वैल्यू की लेमडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो हम फिर करने जा रहे हैं, तो हम x के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। x upon 3 equals to lambda, this will give out x equals to 5 lambda minus 3। ओके, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y माइनस 1/2 इक्वल्स टू लेमडा, और ये हमें दे, दिस विल गिव अबाउट द y इक्वल्स टू 2 लेमडा प्लस 1। एंड सिमिलर वे, इसी तरीके से हम z के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, z प्लस 4/3 इक्वल्स टू लेमडा, दिस विल गिव आउट z इक्वल्स टू 3 लेमडा माइनस 4। सो हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट इज 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4। ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप यानी लैम्डा हमने लैम्डा के टर्म्स में फाइंड कर लिया। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमें डी आर्स अब p एंड q। सो डी आर्स हम कैसे p और q के फाइंड कर सकते हैं। सो हम क्या करने जा रहे हैं, डी आर्स ऑफ p एंड q, पी क्यू के हमें डायरेक्शन रेशियोज पता करने। तो क्या हो जाएंगे, q माइनस पी, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ q माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। सो व्हाट इज दैट, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या थे हमारे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q थे 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1। सो q के कोऑर्डिनेट्स थे 5 लैम्डा minus 3, we can put that 5 lambda minus 3, 2 lambda plus 1 and 3 lambda minus 4। कंफर्म कर लो एक बार, 5 lambda minus 3, 2 lambda plus 1 and 3 lambda minus 4। ओके, और मेरा क्यू पी पॉइंट्स क्या था, पी पॉइंट था 0 2 3। ओके, सो हमारा पी पॉइंट क्या था, 0 2 3। सो हमें पी क्यू फाइंड करना है। ओके, हमें क्या करना है, डी आर पी क्यू के फाइंड आउट करने हैं। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्यू आर क्यू के कोऑर्डिनेट्स और माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो हम यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 5 लेमडा माइनस 3 माइनस पी का कोऑर्डिनेट्स। ओके, कॉमा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2, कॉमा 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 3। ओके, सो हमें डी आर्स मिल गए, वो हो गए 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 1 एंड 3 लेमडा माइनस 7। ये हमें पी क्यू के डी आर्स मिल गए। ओके, और हमें लाइन के डी आर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। लाइन के डी आर्स हमारे कहाँ से मिले, ये जो लाइन के डी आर्स हैं 5 2 एंड 3। ओके, सो लाइन के हमें डी आर्स मिल गए, सो 5 2 3। ओके, डी आर्स ऑफ लाइन that is 5 2 3। So we are going to implement the perpendicularity condition. So just a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। So 5 into 5 lambda minus 3 plus 2 into 2 lambda minus 1 plus 3 lambda minus 7 equals to 0। So ये क्या हो गया, 25 lambda minus 15, 4 lambda minus 2 plus 9 lambda minus 21 equals to 0। 9 lambda, 4 lambda and 25 lambda। So ये हमें क्या देके जाएंगे, जनरली दिस विल गिव आउट, सो ये हो जाएगा 19 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 23 23 एंड 15, 23
23 एंड 15 हो जाएगा 23, 33, 39. ओके, 38. Okay, yeah. So this will give out 38 lambda equals to 38. So this will give out lambda equals to 1. So next what we will do, अब हमें क्या करना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पता चल जाएंगे. सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जनरली ये हमारी लाइन थी, ये थी, और हमारे ये थे 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1 एंड 3 लैम्डा -4. ओके, सो ये हमारे थे और हमें ये पॉइंट ऑलरेडी पता था 0, 2 एंड 3. ओके, सो जस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ क्यू. सो लैम्डा की वैल्यू 1 थी, सो 5 - 3 कॉमा 2 + 1 and 3 - 4. So 2, 3 and -1. This is the point of Q. So coordinates of Q equals to 2, 3, comma -1, and coordinates of P equals to 0, 2 and 3. Okay, so we are going to find out the distance. We can say that length of perpendicular. What is the length of perpendicular? Length of perpendicular, so under root x2 minus x1 का whole square, y2 minus y2 1 का whole square, so 2 minus 0 whole square plus 3 minus 2 whole square plus -1 minus 3 whole square. Okay, so this will give out under root 4 plus and 1 and plus 16. This will give out under root 21 units. So तो ये ऐसे सॉल्यूशंस निकाला था जब कार्टेशियन इक्वेशंस हमें गिवन थी. ओके, सो ये निकल आया. अब अगर हमें इक्वेशंस कैसी दी हो, अगर वेक्टर इक्वेशन में दी हो तो हम क्या करेंगे, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, जस्ट हमें वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाती है, आर इक्वल्स टू ए लेमडा प्लस ए प्लस लेमडा बी, वेयर ए इज द पोजीशन वेक्टर. ओके, जहां से लाइन पास हो रही होगी. ओके, एंड बी इज द डी आर्स का वेक्टर. ओके, सो हम पता कर सकते हैं ये चीज़. सो बी हमें पता हो गया. देन हम इसको भी स्टेप्स से करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे. अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर को किसके इक्वल रखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसको किसके इक्वल रख देंगे, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर के इक्वल. और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जो जो वैल्यूज हमारी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होंगी, ये चीज. ओके, और हमें यहाँ पे एक पी पॉइंट ऑलरेडी दिया होगा, क्यों हम एक्स वाई जेड में निकाल लेंगे. ठीक है, देन हम सारे वही प्रोसेस करेंगे जो हमने अभी तक उसमें किए. ठीक है, देन हम क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर निकालेंगे. ओके, पी क्यू वेक्टर हम निकाल लेंगे. ओके, देन हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे. परपेंडिकुलरिटी कंडीशन होती है. परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या होती है, अगर डॉट प्रोडक्ट किसी का जीरो होता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं. जस्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी cos theta. If cos theta equals to 0, so theta is equals to 90 degree. So this will prove out that, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, अगर थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है. तो ये चीज़ हो जाएगी. और यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यूज निकल आएंगी. और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगी. तो ये प्रोसेस किसका है, ये प्रोसेस वेक्टर इक्वेशन जब हमें कभी दी जाए. ठीक है, सो हम कर लेंगे. और इसमें ये बोला गया बी वेक्टर, तो बी वेक्टर हमें कहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से. और पी क्यू वेक्टर हम कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियोज निकाल. ओके, तो हम चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है. ओके, सो
नेक्स्ट ये क्वेश्चन है और इसको करते हैं। सो हमें देखो इसमें दिया हुआ है, ओके, आर क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर हमें दिया हुआ है 11 i कैप माइनस 2j माइनस 8k कैप प्लस लेमडा 10i माइनस 4j कैप माइनस 11k कैप। ओके, सो हम इसको एक्स आई वाई जे और जेड के कैप में कंपेयर करा देंगे। सो क्या हो जाएंगे, आई वाले एक साथ लेके आते हैं, ठीक है, ये आई है 10 i ले और ये 11 i। सो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 10 लेमडा एंड आई कॉमन प्लस जे कॉमन। अब हम जे वाले देखते तो क्या है -2 -4 लेमडा। ओके, देन हम देखेंगे के वाले। ओके, सो के वाले क्या हो जाएंगे -8, ओके, एंड -11 लेमडा। जब हम कंपेयर कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 11 प्लस 10 लेमडा, ओके, y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -2 -4 लेमडा एंड z की वैल्यू मिल जाएगी -8 -11 लेमडा। ओके, तो ये मुझे मिल जाएगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज हमें इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ओके, इस पॉइंट की, ये पॉइंट हमें दिया गया है, ये पॉइंट क्या है बी वेक्टर 2i जे एंड 5 के। ओके, सो ये पॉइंट क्या है 2 -1 5, ओके, और ये पॉइंट हमें लैम्डा के टर्म्स में क्यू मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, जनरली पी क्यू निकालेंगे अब। ओके, पी क्यू कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा डी आर से निकाल देंगे। ओके, सो फॉर द पी क्यू वेक्टर, ओके, हम क्या करेंगे 11 प्लस 10 लेमडा -2, ओके, एंड -2 -4 लेमडा -1 -1, ओके, ठीक है, एंड -8 -11 लेमडा -5। सो क्या हो जाएगा ये 11 सॉरी 9 प्लस 10 लेमडा कॉमा 1 -4 लेमडा, ओके, देन -13 -11 लेमडा। ये किसके डी आर्स निकाला है हमारे पी क्यू के। ओके, पी क्यू के हमारे डी आर्स निकाला है। ओके, सो ये पी क्यू वेक्टर निकल आया एक तरीके से। सो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 10 लेमडा आई प्लस 1 -4 लेमडा जे एंड प्लस -13 -11 लेमडा के। ओके, ठीक, ये निकल आया और हमें ये दिया हुआ है बी वेक्टर मुझे पहले से ही पता है। ओके, सो वी वेक्टर हमें कहाँ से पता चल गया, ये वी वेक्टर हमें इक्वेशन में ही दिया हुआ है। ओके, सो पी क्यू वेक्टर ये है और बी वेक्टर वो है, तो परपेंडिकुलरिटी हम प्रूफ लगा देंगे इसमें। सो फॉर परपेंडिकुलरिटी पी क्यू डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेयर अवर पी क्यू वेक्टर इज 9 प्लस 10 लेमडा, ओके, आई प्लस -1 -4 लेमडा जे प्लस -13 -11 लेमडा के डॉट। ओके, डॉट किससे करना है, जो बी वेक्टर है और वो क्या है 10i -4j -11 के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। हम चेक कर लेते हैं बी वेक्टर यही है। सो बी वेक्टर हमारा है 10i -4j -11 के। ओके, ठीक, देन हम ये करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 9 प्लस 10 लैम्डा, ओके, देन -4 इंटू -1 -4 लैम्डा प्लस सॉरी -11 इंटू -13
13 माइनस 11 लेमडा इक्वल्स टू 0। सो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 प्लस 100 लेमडा, ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 16 लेमडा माइनस का 11 इंटू 13 प्लस का ये आ जाएगा और प्लस का 121 lambda equals to 0. On solving that, 237 lambda equals to minus 237. This will give out lambda equals to minus 1. Okay. Now, अब हम क्या करेंगे, हमें lambda की वैल्यू मिल गई, तो अब हम lambda की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स आप q क्या थे, जनरली q के कोऑर्डिनेट्स हमारे थे ये। ओके, ठीक है, ओके, ये q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये थे, तो हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो लेमडा की वैल्यू -1 थी, तो 11 प्लस 10 इंटू -1, सॉरी प्लस 10 इंटू -1, दिस विल गिव आउट n -2 प्लस 4 एंड -8 -11 प्लस 11। सो अब वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1, 2, 3। सो हमारे q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए जनरली, जब हम इसमें q की वैल्यूज रखेंगे सो हमें क्या मिल जाएगा जनरली -1। ओके, सो हम निकाल सकते हैं ये चीज़ें। ओके, क्या हमने पॉइंट्स निकाले थे, ओके, तो हमें मिल गए थे पॉइंट्स, हमें मिले थे ये 11 प्लस 10 1 2 एंड 3। ओके, ये ठीक है, हम ये 2 एंड 3। ओके, सो अब हम कर सकते हैं चीज़ें, ये हमें क्यू के पॉइंट मिले, देन अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसकी। ओके, सो डिस्टेंस क्या निकालेंगे हम, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1 2 3 एंड पोजीशन वेक्टर था 2 5 एंड 3। सो हमें p के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे तुम्हारे कितने, 2 -1 एंड 5 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए 1 2 3। सो अब हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, यानी लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सो वो होगी तुम्हारी, क्या होगी, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। सो ये हमें देगा √1 प्लस 9 प्लस 4। ओके, सो √14 units will be the our answer। ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, सबसे पहली चीज, अगर कार्टेशियन में दी है तो हमें एक्स वाई जेड निकाल देना है लैम्डा पुट करके, और अगर वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, ओके, फिर मुझे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में मुझे क्या करना है, जनरली हम कंपेयर करके एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, देन हम सेम प्रोसेस अपना सकते हैं दोनों के लिए। ओके, कोई इशू नहीं है, आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। रेगुलरिटी रखिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज उससे हम डेली अपडेट्स दे रहे हैं, हमारे डेली एक लेक्चर अपडेट हो रहा है और आपको डेली का डेली आपको मिलता रहेगा। ओके, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, कहीं कोई मिस्टेक हो गई है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर today's lecture and hope you are fine and enjoy the lecture series. Thank you so much.